قائد نون لیگ میاں نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود عوام میں پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم کی اڈا پلاٹ پر نان بھائیوں سے ملاقات۔ میاں نواز شریف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ روٹی کی قیمت معلوم کی۔ وزیر اعلیٰ نے ریٹ لسٹ کا بھی معائنہ کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز نے عوام سے ان کی رائے بھی معلوم کی۔ کہا روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا۔ کیسے ہوگی سستی روٹی اور نان؟ عوام پریشان۔ شہر میں سرکاری احکامات پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ روٹی 20 اور نان کی 30 روپے میں فروخت جاری۔ ضلع انتظامیہ اور نان بھائی ایسوسی ایشن آمنے سامنے۔ شہریوں کی حکومت سے ریلیف کی اپیل۔ عوام کو سستی روٹی کی فراہمی کا مشن۔ وزیر خوراک بلال یاسین ان ایکشن۔ مہنگی روٹی اور نان بیچنے پر 14 افراد گرفتار۔ 2 پوائنٹ سیل کر دیے۔ مارکیٹ کی ناقص مانیٹرنگ پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سرزنش۔ روٹی نان کی نئی قیمت پر عمل درآمد کے لیے ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹے میں 3514 نان شاپس کی چیکنگ کی گئی۔ خلاف ورزی پر 434 تنور مالکان کو 7 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ 72 مقدمات درج۔ تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس۔ نان روٹی کی نئی قیمت پر عمل درآمد اور کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ پرائز میجسٹریٹس کو قیمت کی چیکنگ کو دگنا کرنے کی ہدایت۔ کہا نان روٹی کی نئی قیمت پر فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ مرغی کا گوشت 7 سینچری سے 3 قدم دور۔ ایک ہی روز میں 31 روپے فی کلو مہنگا۔ 697 روپے کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پولٹری ایسوسی ایشن کی ہٹ دھرمی کے خلاف چکن فروش بھی سراپا احتجاج۔ شہر میں 90%۔ پیٹرول 4 روپے 53 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 8 روپے 14 پیسے لیٹر بڑھ کر 290 روپے 38 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 69 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت 193 روپے 8 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ مہنگائی کی آگ پر پیٹرول کا چھڑکاؤ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے پر عوام آگ بھگولا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالے، بجلی گیس کے بل ادا کریں یا پیٹرول ڈلوائیں۔ جائیں تو کہاں جائیں؟ حکومت کچھ تو رحم کرے۔ سب کے ساتھ ہی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حکومت کے آنے کے دکھانے کے داند کچھ اور ہوتے ہیں، کرنے کے کچھ اور ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں، بس مجبوری ہے، ڈلوانا تو ہے ہی ہے۔ ہماری ریاست کو چاہیے، ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ یہ پیٹرول کی مصنوعات جو کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پیٹرول آرڈر جاری کیے جائیں کہ یہ غریب آدمی کہاں جائے۔ جو 200 400 500 ہزار کمانے والا وہ 500 کا پیٹرول ڈلوائے گا تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ وہ اپنے بچے تو بھوکے مارے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے اثرات۔ ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھانے کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چھوٹی گاڑیوں کے کرائے میں 50 اور بڑی گاڑیوں کے کرائے میں 100 سے 200 روپے اضافے کا امکان۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی سرگرم۔ پی ایف اے کا پنجاب بھر میں عید اسپیشل آپریشن۔ 6500 سے زائد فوڈ بزنسز کی چیکنگ کی گئی۔ 804 فوڈ پوائنٹس کو 96 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ 11 ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبی شجاع الرحمان کو محکمہ پارلیمنٹری افیئرز کا قلمدان بھی مل گیا۔ محکمہ سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ پارلیمنٹری افیئرز خلیل طاہر سندھو کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد خالی تھا۔ ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ مفاد عامہ سے متعلق 3 قرارداد پیش۔ گندم کی امدادی قیمت اور امن و امان کے حوالے سے بھی بحث جاری رہی۔ دی پروونشل پنجاب اسمبلی لا ترمیمی بل 2024 پیش کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ نے اجلاس کی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔
गंदम खरीदारी के नाम पर हुकूमत किसानों को लूटने जा रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर की लफ्जी गोलाबारी। कहा दिसंबर में गंदम और आटे का बहरान शुरू हो जाएगा। नान बाइयों पर मुकदमात नहीं, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। कहा पाकिस्तान में ज़हनी सेहत से मुतल्लिक अमराज बढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से डिजिटल मैपिंग की जाएगी। चेयरमैन सेनेट मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के एटीसी में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अवाम हुक्मरानों से उम्मीद ना रखें, खुद खड़े हो जाएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी से चैलेंज। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नताइज को हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाप्त करेगा। MNA अजहर कयूम नाहिर और MPA राना अरशद की कामयाबी मुअत्तल। हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं की जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अजहर कयूम नाहरा के मुखालिफ बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। अजहर कयूम नाहरा गुजरांवाला, राना अरशद नानकाना से इलेक्शन जीते थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ डकैती का मुकदमा भी सामने आ गया। मुकदमा थाना लोअर मॉल में अगस्त 2023 में दर्ज हुआ। पुलिस ने अदालत में फवाद चौधरी के मुकदमात का रिकॉर्ड पेश कर दिया। FIR के मुताबिक 30 साला नामालूम नौजवान ने दुकान में घुसकर मोबाइल और नकदी छीनी थी। सरसब्ज पंजाब खुशहाल काश्तकार प्रोग्राम के हवाले से बड़े फैसले। छोटे किसानों को 300 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पंजाब के 8000 सरकारी खालों को दोबारा पुख्ता करने का फैसला। 5 से 20 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम भी फराहम किए जाएंगे। मुआविन खसूसी वज़ीर आला ज़ीशान मलिक से सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की मुलाकात हुई है। पंजाब में साफ पानी की फराहमी समेत कम्यूनिटी डेवलपमेंट के मंसूबों पर बातचीत हुई। मुआविन खसूसी ज़ीशान मलिक का वज़ीर बल्दियात के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को AI टेक्नोलॉजी से लेस करने का फैसला। स्पेशल ब्रांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कायम किया जाएगा। 29 करोड़ 73 लाख रुपए लागत का तखमीना लगाया गया। पंजाब की जामियात में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स और प्रमोशन मशीन लर्निंग का फैसला भी किया गया। पंजाब में तकर्रर और तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म। स्टाफ ऑफिसर टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अनिल सईद का तबादला। अनिल सईद को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जर्नल अटक लगा दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम। लाहौर समेत सूबे भर में 24 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। महकमा जंगलात ने दस्तावेजात मंजूरी के लिए PND बोर्ड को इरसाल कर दी। ग्रीन पंजाब प्रोग्राम पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। महकमा एक्साइज पंजाब ने नंबर प्लेट्स की फीस वसूली बंद कर दी है। शहरी अब खुद नंबर प्लेट्स बनवा सकेंगे। महकमा एक्साइज ने 30 लाख नंबर प्लेट्स की फीस वसूल करने के बावजूद प्लेट्स फराहम नहीं की। महकमा एक्साइज के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई काबीना ने डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुलाजमीन की मुद्दत में तौसी की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी एक्साइज की दरख्वास्त पर मुद्दत मुलाजमत में 31 दिसंबर 2024 तक तौसी दी गई। वाइडे का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बाहर एहतजाज। MS सिलेक्शन कमेटी में मुतअद्दिद मेंबरान शामिल करने पर नारेबाजी। कहा किसी डॉक्टर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कबूल नहीं करेंगे। मुतालबात न सुनने पर OPD बंद करने का इंदिया दे दिया।
प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने ग्रेड 18 और 19 के अफसरों के तबादले कर दिए। वकार आबिद भट्टी डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इंचार्ज इंसदादे बिजली चोरी सेल तैनात। नवीद उमर भट्टी को हाई प्रोफाइल केसेस और पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लैंड लाइन, स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन मुहिम के पहले रोज 4,419 व्हीकल्स को चालान टिकट जारी किए गए। सीटीओ अमारा अजहर का कहना है बेहंगम ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह लैंड लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को ने शिकंजा कस दिया। 24 घंटे में 307 मुलजिम बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 112 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 11 मुलजिम गिरफ्तार। कनेक्शंस में 7 कमर्शियल, 5 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 268 घरेलू थे। अब अर्जेंट शनाख्ती कार्ड सिर्फ 15 दिनों में मिलेगा। नादरा ने अर्जेंट दरख्वास्त पर शनाख्ती कार्ड डिलीवरी की मुद्दत कम कर दी। मुख्तस फीस की अदायगी के बाद 10 दिनों में ही कार्ड की डिलीवरी को यकीनी बनाया जाएगा। नॉर्मल शनाख्ती कार्ड की फीस 750 और अर्जेंट कार्ड फीस 1500। वॉल्टन रोड रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर अपग्रेडेशन का मंसूबा 167 में से 120 ग्रिड्स रख दिए गए। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे पर मेन ट्रैक सीवरेज का 100% काम मुकम्मल। फ्लाईओवर की स्लोप्स और स्लिप रोड्स पर काम जारी। कमर्शियल फीस ना दहिंदगान और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरा तंग। LDA ने मुस्लिम टाउन, जेल रोड, शादमान और टिम्बर मार्केट में 10 इमलाक को सील कर दिया। ऑपरेशन की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने की। लाहौर बहाली प्लान पर काम तेजी से जारी। 187 में से 119 PC1 तैयार। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की जेर सदारत इजलास। कहा सीवरेज की बहाली, सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स और पैच वर्क लाहौर बहाली प्लान का हिस्सा हैं। महकमा इंडस्ट्रीज का तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा की जेर सदारत इजलास। कहा 90,000 के करीब बच्चों की ट्रेनिंग आलमी मयार के मुताबिक करवाई जाएगी। शमसी तवानाई वाले प्रोजेक्ट को पहले मरहले में शामिल किया जाए। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ कॉम्बिंग ऑपरेशन। अब तक 60 जंगली जानवर और 3,000 से ज़ायद परिंदे कब्जे में लिए जा चुके। डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक की ऑपरेशन की निगरानी। होशियार खबरदार, 18 से 31 अप्रैल तक बारिशें होंगी मूसलाधार। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिशों, आसमानी बिजली की गरज चमक और तेज हवाओं की पेशगोई। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मारूफ गुलकार गुलाम अब्बास अलील हो गए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की गुलकार के घर आमद। वजीर आला की तरफ से इलाज के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया। गुलकार गुलाम अब्बास ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया।